पंखा वगैरह गाड़ियों को सुधारने के लिए what should be the word for सुधारना? should be repair. What should be the second form of repair? The second form of repair should be repair. इसके बाद ये दो बिंदी लगाई अर्थात आर को दबा देना है सर में रिपेयर रिपेयर इसमें ईडी लग जाएगा सेकंड फॉर्म एंड व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म The third form of repair should be repair. and what should be the word for गलती आदि सुधार The word for गलती आदि सुधारना should be what is it? What should be the second form of correct? the second form of correct should be correct. Correcting. And what should be the third form of correct? The third form of correct should be corrected. आज मैंने एक आध दो लोगों का इंट्रोडक्शन सुना तो खुशी हुई। दैट्स ऑल आप लोग लगाना सीख गए हो। कुछ लोगों को भी दिक्कत हो रही है वो दूसरे सुधार दीजिए। लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन से अंग्रेजी में लिया गया डिटो, इसका अर्थ होता है सेम। बता सकें व्हाट शुड बी द अनदर वर्ब फॉर गलती सुधारना? Another word for गलती सुधारना should be rectify. What should be the second form of rectify? the second form of rectify should be rectified. And what should be the spelling of second form? The spelling of second form should be RECTIFIED. ये जो आखिरी में F लगा है ये Y लगा है ये I में बदल रहा है RECTI और S तक सेम टू सेम स्पेलिंग रहेगी ये Y हट के I बन जाएगा और फिर ED लग जाएगा। आप नहीं लिख रहे हो ये लिख लीजिए पहले। What should be the third form of rectify? The third form of rectify should be rectified. So what should be the noun of correct? Noun of correct should be correction. एक नाउन है ये भी सही। What is correction? Correction is a noun. And what is the meaning of correction? Meaning of correction should be What should be the another noun of correction? another noun of correct should be So what should be the adjective of correct? adjective of correct should be वो अपने आप में ही है। आज फिर से हम एक बात दोहरा रहे हैं कुछ नए बच्चों का बात में एडमिशन। बच्चों अंग्रेजी में एक ही शब्द एक से अधिक रूप में काम करता है या कर सकता है।
एक ही से कई रूपों में काम करता है। तो करेक्ट वर्ब तो है ही, ये एडजेक्टिव। चलो पूछते हैं, व्हाट इज करेक्ट? And what is the meaning of correct? Meaning of correct should be तो पिछली क्लास में एब्सेंट फ्राइडे, तुम इधर पर आ जाओ, सेकंड नंबर पर आ जाओ बेटा, तुम उधर से जाओ। नहीं, तुम अपनी ही जगह से आगे बढ़ जाओ, तुम भी बढ़ जाओ और बेटा नहीं इधर। Have you written the first word? Yes, sir. We have written the first word. Yes, sir. You should be. Have you written the second word? Yes, sir. We have. क्या दूसरी word? Sir, दूसरी word is correct. Should I erase? Yes, sir. You should be. क्या मैं डाल दूं? Yes, Have you written the third word? sir. We have written the third word. Should I erase? Yes, sir. You should be. Have you written the noun? Yes, sir. We have written the noun. Should I erase? Yes, sir. You should be. So what was the last effective sentence? Last effective sentence was इसके साथ का इडियम दिया था? नहीं दिया था। पहले उसके साथ का इडियम लिख देते हैं। टॉम डिक एंड हैरी के साथ you should be ashamed of. Yes. Can anybody guess the Hindi Mahan? अभी हिंट थे। You should be ashamed of yourself. sorry. You should be ashamed of yourself. तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए. Be ashamed of yourself. तुम्हें चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए. You should be ashamed of yourself. तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब. You should be ashamed of yourself. तुमने देशद्रोह किया है, तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए. You have done it, Railan. You have done that. T-I-S-O-N. You have done it, Railan. You should be ashamed of yourself. तुमने देशद्रोह किया है, तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए. ये शब्द कहाँ से सीखा? और इसका एडजेक्टिव क्या है? ट्रेटर। स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसकी स्पेलिंग जो तुमने शब्द बोला, इसकी स्पेलिंग बता। S-O-N. हाँ, तो S-O-N हटा दो और वहां पे लगा दो OR।
ट्रेटर बन जाता है, देशद्रोही, गद्दार। कल ढूंढ लेना और ग्रुप में शेयर कर। You should be ashamed of yourself. Don't you know why you do that? You should be ashamed of yourself. तुम्हें यूट्यूबर पानी में डूबना। You should be ashamed of yourself. तुम्हें चिल्लूबर पानी में डूबना चाहिए। You should be ashamed of yourself. तुम्हें यूट्यूबर पानी में डूबना चाहिए। You should be ashamed of yourself. तुम्हें चिल्लूबर पानी। You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Good study. You should be ashamed of yourself. तुम्हें चिल्लूबर पानी में डूबना चाहिए। You should be ashamed of yourself. तुम्हें यूट्यूबर पानी में डूबना चाहिए। You should be ashamed of yourself. Good. किसने बोला? एक ही ने बोला। You should be ashamed of yourself. तुम्हें चिल्लूबर पानी में डूबना। और कहना। You should be ashamed of yourself. तुम्हें चिल्लूबर पानी में। बच्चों, what is ashamed? Ashamed is an adjective. Adjective. Yeah, right. And what is the meaning? शर्मिंदा। बच्चों, this is today's interactive sentence. ये तो बहुत कॉमन है, इसी सब The path is cut. हाँ, इसका उच्चारण ऐसे करिए। बच्चों, हम 27 साल से हिंदी की एक गलती करते आ रहे हैं। उस दिन हमने दस्तर बीच में फिर एक गलती बताने की, समझाने की कोशिश की कि हम कैसे गलत गलत बोलते हैं कि ये दस्तर बीच सेंटर में, या तो ऐसा बोलो बीच में पड़ा या ऐसा बोलो सेंटर में पड़ा है। उसके बाद हमने 2-3 गलतियां और की थी, तुम लोग पकड़ नहीं पाए। हाँ, हमने एक और की थी कि मैं अभी जस्ट आता हूँ, तो या तो बोलो अभी आता हूँ या आई एम जस्ट कमिंग, दोनों बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, जस्ट भी बोलते हैं। एक और गलती की थी आपने ही पकड़ पाए। अच्छा चलो, ऐसे ही कुल टोटल हमने कितनी गलतियां की थी बताओ। पहली कौन सी? और दूसरी? और तीसरी? अगर याद नहीं हो तो हम फिर से रिपीट करके बताते रहेंगे, करें? फिर से रिपीट, ये भी तो गलती। तो फिर से बोलो, ये रिपीट, ये भी गलती है। और कुल टोटल तो तुम बिल्कुल कॉमन है, सुन लेना भाई साहब। कुल टोटल कितना? अरे भाई साहब कुल कितना हुआ ऐसा पूछे, भाई साहब टोटल कितने ऐसा, दोनों लगा कुल भी लगा दे। तो हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश की कि इंग्लिश में फ्लोर शब्द का प्रयोग जरूरी है, लेकिन हिंदी में पूछना बोलने की जरूरत है, उसमें फ्लोर शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं।
देखिए क्वेश्चन नीचे ही लगना चाहिए। अगर हम इसको साफ करेंगे तो हम दीवार साफ कर रहे हैं या धो रहे हैं ऐसा कुछ और बोलेंगे। दीवार पे पोछा लगा रहा है ऐसा नहीं बोले, या छत पे पोछा लगा रहा है ऐसा नहीं बोले। लेकिन वो नहीं समझ पाए थे ना लास्ट में। तो हिंदी में खाली पोछा लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी एक गलती हम बता रहे हैं। हम लोग सब लोग जोर से चिल्लाते हैं बोलते हैं जैसे लाइट गोल हो गई, तो लाइट गोल हो जाती है क्या? पहले लंबी रहती है और फिर गोल हो जाती है, नहीं ना? तो आज एक बार सही बोलेगा उसके बाद फिर चलेगा। एक्चुअली ये उर्दू भाषा का शब्द है। यहाँ अधिकतर तो बच्चे हैं, तुम लोग में से कोई या पटेल साहब अगर शेर और शायरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो ये शब्द शेर और शायरी में सुनने को मिले। अरे वाह, गुड, अच्छा एग्जाम्पल दिया इसने। हम तो कठिन वाला उदाहरण दे रहे थे, सरल वाला। कौन सी पिक्चर था? ये नाम ही ना अच्छा, पिक्चर का नाम नहीं है। अरे वाह, शायद पूरा वाले देखो श्रद्धा कपूर। क्या नाम है शायद कपूर पिक्चर का? ऐसे ही लिखा है। अच्छा ये बताओ, तुम में से कभी किसी ने ये शेर आज भी सुना है कि चिराग गुल कर दो मेरा महबूब आया? अब तुम लोग नहीं, हो सकता है नहीं सुनते हो शेर शायरी, सुना है? चिराग गुल कर दो यानी जितने चिराग जल रहे हैं मोमबत्तियां ये जाने। तो ये है भविष्य। चलो ये अभी को तुमने अच्छा किया बेटा, अपने मन से पिछले बारे में क्रिएटिविटी करती, तो जिसकी इच्छा हो वो क्रिएटिविटी कर। The park is cut. Light blue हो गई। The park is good. That's the good. लाइट को The park is good. Light blue. लाइट को Oh, sit. Skirt. I was preparing birthday party. सत्यानाश लाइट गोल हो गई, मैं बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। लाइट गोल हो गई। The fire is cut, light goes free. The power is cut. Light blue. Damn it, the power is cut. सत्यानाश लाइट गोल हो गई। हम ये तुम्हें इशारा करने वाले थे, फिर हम लोग ध्यान नहीं रखती। जो इस क्लास में मिला है उसका प्रयोग करना समझदारी है। This is today's idiom. तुम कर लेते हो वैसे धन्यवाद वैसे। तो तुम्हारे भी गुणों की परीक्षा है। ऐसा नहीं करना।
अच्छा प्रयास। आंखों का देखा तो सोचो। ये थोड़ा निकट पहुंचे। दृढ़ विश्वास। हाँ, हम ये बोलने वाले थे कि दो क्रियाएं इसमें दिखाई दे रही जिनमें आएंगे लगा, तो दोनों का कहीं ना कहीं अर्थ हिंदी महावरे पे ऐसे बोलते रहना चाहिए, सही होना। इससे कम से कम हमें ये पता चलता है कि ये बच्चे हिंदी के कितने मुहावरे जानते हैं बस, इसलिए हमको सेकंड दे देते हैं। और वास्तव में यही है सही प्रोसेस। सीधे सीधे पका पका है दे देना तो ठीक है, लेकिन थोड़ा चलाना चाहिए तो राइट साइड वाली। आंखों का देखा मेरे सच नहीं होता। विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला बेटा कौवा तुम्हारा कान ले गया तो कौवे की तरफ भागने लगे। पहले कान तो देखो, चेक करो कि है कि नहीं अपनी जगह। तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखों देखी पर विश्वास। ये उदाहरण सुना होगा कि कौवा तुम्हारा कान ले गया। वो तो कहावत तो नहीं है बेटा, लेकिन जब बच्चों के धीरे धीरे दूध के दांत टूटते हैं तो उनको बोला जाता है अरे तुम्हारा दांत कहाँ गया, चूहा ले गया, लाड़क के साथ ले गया। अच्छा, इसने दूसरी बार ढंग से पढ़ी नहीं थी, इसलिए इसने प्रयास नहीं किया। तुम बोलो। आपको देखिए पहले विश्वास करना चाहिए। आपको देखी पर विश्वास करना चाहिए। आपको देखी पर विश्वास करना। Don't believe in hearing because seeing is believing. कानों से सुनने के बाद विश्वास नहीं क्या करो, क्योंकि आंखों देखी पर ही विश्वास करो। Don't believe in hearing because seeing is believing. आपने सुनने पर विश्वास मत किया करो, क्योंकि आंखों देखी पर ही विश्वास करना चाहिए। बच्चे जो हम तुम लोग को बहुत ज्यादा प्रयास से तुम लोग को बार बार बोलते हैं सुबह के ब्रश, ये बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी हटाता है। इसने देख लिया पैटर्न क्या है और उस हिसाब से दूसरा बनाता है। एक बार हमारे साथ बोलिएगा, डोंट बिलीव इन हियरिंग। इसने हियर में आईएनजी लगा, बिकॉज़ seeing is believing. कानों सुने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखों देखी पर विश्वास। अब हियर क्रिया कोई बहुत ऐसी नहीं है कि स्पेशल बात, उसमें फटाक से आईएनजी लगा, सब में आईएनजी लगा। देखिए ना, दिस इज simple process. Seeing is believing. आपको देखी पर ही विश्वास करना चाहिए। Seeing is believing. आंखों देखी पर ही विश्वास। Seeing is believing.
देखी बड़ी विश्वास करना चाहिए। Seeing is believing, आपको देखी बड़ी विश्वास करना चाहिए। Don't trust anyone because seeing is believing. हर किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि आपको देखी पर विश्वास करना चाहिए। Seeing is believing, आपको देखी बड़ी विश्वास करना चाहिए। अभी हमें एक चीज सबको पता है, जिस तरह से अभी पटेल साहब ने बोली, वो साफ साफ सेंटेंस सुनाई दिया कि he is reading and speaking। शुरू में सबके साथ ये है। फिर धीरे धीरे आप इसको एक्सप्रेशन के साथ बोलने लग जाते हैं, और वहां से शुरू होती है सफलता की यात्रा। Seeing is believing, हमको देखी पर विश्वास। Seeing is believing, आपको देखी बड़ी विश्वास करना चाहिए। Seeing is believing, आपको देखी पर ये विश्वास। Seeing is believing, आपको देखी पर ये विश्वास है। इसका इन्वर्टेड बना के बताओ। हाँ बिल्कुल, सीधी सीधी पूछो, हिंदी नहीं करना। Is seeing believing? Yes, seeing is believing. Is seeing believing? Yes, of course. Seeing is believing. Hello. Is seeing believing? Yes, seeing is believing. Sorry. Seeing is believing. Is seeing believing? Yes, Of course, seeing is believing. is seeing is believing. Sorry. Neither the goals. कुछ नहीं यार, तुम भूल गए ये तीन इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम होता था आसान Is कर seeing believing? Yes. Seeing is believing. Is seeing believing? Yes, of course, seeing is believing. हाँ गुड। हम यही अपेक्षा कर रहे थे कि अभी देखिए आपका सेंटेंस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस को पढ़ा है, उसके उसमें लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे पढ़िए। Is seeing believing? Yes, seeing is believing. Is seeing is believing. Yes. Yes, seeing is believing. Excuse me. Is seeing is believing? Sorry, come. Is seeing believing? Yes, seeing is believing. ये तुमने अच्छा किया। कुछ बच्चे के अंदर के वो आंसर देने के दबाव में थे, भले सामने वाले ने मदद कोशिश कर दी, तुमने कम अगेन सही किया, बिल्कुल सही। Now, is seeing believing? Obviously, seeing is believing. Is seeing believing? Sorry. Yes, seeing is believing. Is she is believing? Sorry. Is she is believing? Sorry. Is she is Sorry. Is she believing? Sorry. बच्चों एक सेकंड रुकना, तुम लोग के पेरेंट्स में कोई मंत्र लिख हेडिंग आज पहले मंत्र की जगह यहाँ पढ़ रही है। Should I erase the instruction sentence? Yes. Should I erase the idiom? Yes. बच्चों, what should be the verb for भरोसा करना? What should be the second form of trust? The second
second form of trust should be trusted. And what should be the third form of trust? The third form of trust should be trusted. तुम लोग को जब हमने बोला था कि मंत्र, हेडिंग लिख लो मंत्र या अंग्रेजी में मंत्र, तो तुम लोग के मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि इंग्लिश क्लास में सर संस्कृत के मंत्र लिखवाएंगे क्या, ऐसा कुछ। लेकिन आज हम जो लिखवाने जा रहे हैं उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, और हमने उसको मंत्र का नाम क्यों दिया है वो भी हम बताएं। ये जो उसको उच्चारण में खामी है, गड़बड़ी है, ऐसी बहुत से लोगों में पाई जाती है, तो उसको सुधारने के लिए और उसको थोड़ा सा मंत्र का आकार या स्वरूप देने के लिए हम ऐसा निशान लगाए, क्योंकि मंत्र ऐसे होते हैं। ये वहां पे आप लिख सकते हैं। आज पहली जरूरत पड़ी है, समय आने पर और जब जरूरत पड़ेगी तब हम वहां लिख पाएंगे। और इसका हिंदी जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण में क्या होता है। ये जो साव है बच्चा, ये सरलते का साव, और जो दूसरा होता है वो शक्कर का साव। तो उसके उच्चारण साफ नहीं है, उसके मुंह से बार बार ये शक्कर वाला शब्द आ जाता है। हम इसके नीचे इसका उच्चारण भी लिख रहे हैं, तुम देखना सा और शा बार बार टकरा रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं। हमें भी लिख रहे हैं ये शक्कर वाला शब्द, ये सरलते वाला, फिर ये सरलते का सा, फिर ये शक्कर वाला, फिर यहाँ सरलते वाला, फिर यहाँ शक्कर वाला। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले राउंड यहाँ से चेकिंग राउंड चला रहे हैं। एक एक को हम ध्यान से सुनेंगे और उसको हम बताते जाएंगे कि उसकी कमजोरी कौन सी है और उसका स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कौन सी। उसके बाद जब राउंड पूरा हो जाएगा तो फिर हम दो तरीके बताएंगे सुधार। पहले हम जरा सबकी कमी बताते हैं। बेटा इसको बोलना। She shells on the seashore. इसको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। इसके दोनों साथ साफ है, लेकिन तुम्हें अब हम बता रहे हैं हमने इसको मंत्र क्यों बोला है। तुमने कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा घर में माला जपते हुए? 108 तो इसलिए हमने इसको मंत्रा बोला। इसको आपको बार बार बोलना पड़ेगा, खेल खेल में घर में बोलना इसको, लेकिन स्वर बोलना पड़ेगा, मन में नहीं निकलना चाहिए, तब सुधरेगा। इसको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर में। कुछ भी खेलते हुए कहीं जा रहे हैं गाड़ी पे तो शिशा शिशा सुंदर शिशा बोल के चले जा रहे हैं, कोई कुछ भी समझे, हमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे दोनों साथ साफ। Seashells on the seashore. तुम्हारे शक्कर वाले शरीर अभी बताने की कोशिश किया। She says only seashore. तुम्हारा सरलते वाला शरीर स्ट्रॉन्ग है, शक्कर वाला कमजोर, उसका शक्कर वाला स्ट्रॉन्ग। अभी हम She says on the seashore. तुम्हें भी थोड़ा सा अभ्यास करना। She says on the sea. तुम थोड़ा इस पे बस ध्यान देना।
She sells on the seashore. ये बिल्कुल वीक है शक्कर वाला। Seashells on the seashore. तुम्हारे दोनों साथ साफ है लेकिन तुम थोड़ा सा ध्यान करना। She sells seashells on the seashore. तुम्हारे लिए कमजोर है। She sells seashells on the seashore. ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। She sells seashells on the seashore. तुम्हारे लिए काफी वीक है शक्कर वाला। She sells seashells on the seashore. तुम्हारे दोनों साथ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा She sells on the seashore. तुम्हारे तो पहले पता चल गया। She sells seashells on the seashore. तो साफ है, लेकिन तुम खेलते रहना इसका। और जहाँ तुमने मंत्रा लिखा है बच्चों, चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिखवा देना जैसे टंगे अनोटी जवान और पिस्ते अनोटा मोड़। इसलिए एक डांस का नाम है आओ ट्विस्ट करें, आओ ट्विस्ट करें। अच्छा समझ गए। रेड कलर ब्लाइंडनेस कराती है। तो क्वेश्चन होगा ना? अब हम तुम्हें तरीका बताते हैं इसको कैसे सुधारना है। Have you written the words? Yes. साफ सरुते का जरूरत है। ये तभी तुम्हारे मुंह से जुबान से बिल्कुल साफ निकलेगा। जब जीभ बिल्कुल सीधी जाएगी, बत्ती सी थोड़ी सी खुलेगी और हवा बाहर निकलेगी। जीभ बिल्कुल सीधी जाएगी, साफ। और शक्कर वाला शब्द बोलने के लिए जीभ ऐसी तिरछी होगी और ऊपर तालू के पास जाके टकराएगी। तालू समझते ना? ऊपर मुंह का ऊपर का हिस्सा जहाँ से खकार अपन बाहर निकालते हैं, कफ बलगम, वो तालू कहलाता है। तो वहां जाएगी, अगर टकरा गई तो षटकोण का शा बाहर आएगा और नहीं टकराई तो शक्कर वाला। लेकिन इतनी बारीकी से कोई मंडला नहीं देख सकता। अपन इसको एक मान लेते हैं और इसको एक ये तरीका है इसको सुधारने का। आप घर में जाके आराम से करके रहिए, आईने में सामने खड़े होके। उसमें धुना गिरने का भी डर होता, पता चला साफ बोलते समय जीभ आगे नहीं आई, आप ही आगे आएंगे, है ना। और शाह बोलते समय मुंडी ऊपर चली गई, जीभ ऊपर नहीं गई। तो दूसरा हम तरीका बता देते हैं सुधारने का, बल्कि हम पहले भी बता चुके हैं और वो कुछ लोगों ने अपना लिया। थोड़ा सा अमेरिकन बन इसने आज बहुत अच्छे से बोला, ये हर बार बोलता ही है, ये भी बोलने लगा है। बाकी लोग डिसाइड कर लो उनको ये बोलने वाला तरीका चाहिए या ये आसान तरीका से।
तय करें। अब हम दूसरा राउंड चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा तरीका अपनाता है। She sails on the seashore. भारतीय तरीका अपना रही है, इसमें टाइम लगेगा। पिछली बार भी इसने ऐसे ही बोला तो हम पकड़ ही नहीं पाए गलती कहाँ है। ये सबसे अच्छा रहेगा। She says on the seashore. कुछ ज्यादा नहीं हो गया। She says on the seashore. She sails on the seashore. Yes. She says on the seashore. और क्या एंजॉय करो। She sails on the seashore. She sails on the seashore. करो 108। She says on the seashore. She sails on the seashore. She says on the seashore. She sails on the seashore. She says on the seashore. She said, seashore on the seashore. Stop. तुम इसका तरीका अपना बेटा, तुम भी छोटे ही हो, बहुत बड़े नहीं हुए। She says, seashells on the seashore. गुड। हर बार तो कोई सा भी सेंटेंस बोलना हो ना, अमेरिकन तरीके से बोलना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा स्वैग के साथ। हालांकि एक चीज हमने फील की है कि पिता बनने के बाद बचपना पता नहीं कहाँ चला जाता है, या माँ बनने के बाद, लेकिन रहता कहीं अंदर ही, हम उसको जकड़े रहते हैं जंजीरों से, समाज से। लेकिन जब भी मौका मिलता है, जब हम अकेले रहते हैं, तो वो बाहर आता है, दिखता है। तो अपने उस बच्चे को कैद मत करिए अंदर, आपके अंदर एक बच्चा छिपा हुआ है, उसको जंजीर से मुक्त कर दीजिए। आप समझ लो इस क्लास में इसके 13 बच्चे बन जाएंगे और इसका फायदा देखिए जल्दी होगा। उसको पकड़ के रखना, बहुत परेशान करेगा वो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2-3 दिन बाद इसको हम फिर सुनेंगे आपके मुंह से एक बार, तो समझ में आएगा किसने कितना प्रयास किया। और ये कोई एग्जाम जैसा नहीं है कि इसमें कोई पास या फेल होगा। और अगर हिंदी जानना चाहते हो तो हम हिंदी बता देंगे, ये हिंदी का महत्वपूर्ण नहीं है। किसी लड़की के लिए शी बोलते हैं, वह समुद्र तट पर सीपियां बेचती है। क्या है हिंदी? सीपियां जानते? अधिकतर बच्चे नहीं जानते, कुछ तो संकोच में पूछते नहीं है और कुछ पूछ लेते, तो हमने एक सुरक्षित करके रखी। रेत आसपास मकान बनता है तो रेत में ये सीपी हमने थोड़ी बड़ी साइज के, ताकि देखे सबको, और उस पर टेप लगा के, ये सीपी है। गांव में इसको घिसके से आम छीलने, आलू छीलने का काम लिया जाता है। ये वास्तव में एक जीव होता है जिसको भगवान ने कठोर आवरण दे दिया है, जैसे टॉर्टोइस को, कछुए को, कि वो चूंकि वो काफी नर्म होता है, कोई भी उसका शिकार कर सकता है। तो वो जो जीव है, जब उसको कुछ खाना पीना रहता है तो वैसा छोड़ता है और अपना भोजन करता है। फिर जैसे कोई उसका दुश्मन करीब होता है तो फट से बन जाता है। ये पानी में रहने वाला जीव ही, उसका खोल भगवान ने करा दिया है।
कहाँ गए? अच्छा वो तुम अगर कभी किसी समुद्र तट पे गए हो, मदुरई वगैरह या ऐसी जगह, वहाँ पे इसके बने हुए गहने और खिलौने ये सब मिलते हैं। तो ये तो ऐसा ही है बेटा, ये यहीं पे नॉर्मल मिल जाते हैं, तो ये बेचने की बात है। वहाँ जो समुद्र में मिलती है वो बड़ी खूबसूरत है, तो वो बिल्कुल समुद्र तट पर सीढ़ियां मिल सकती हैं। और हो सकता है विदेश में इसको खाया जाता है, इसलिए विदेश में इसको खोल के निकाल लेते हैं और उसको तल के भून के जैसे हाँ, वो तो इंसान को छोड़ के सब खाते हैं। एक्चुअली उसका शो क्यों पॉपुलर हुआ पता है बच्चे? क्यों? जीने की चीज़, सिर्फ जीने की चीज़। थोड़ी सी सर्वाइव करने के लिए जीता है। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दीजिए। हम लोग भारत में रहते हैं, गरीब देश से, तो हमारे यहाँ जैसे मम्मी पापा दोनों नहीं कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चलता है, और हमारा ये रूटीन है सुबह हुए अपना घर का काम मम्मी ने किया, पापा अपने ऑफिस चले गए, बिजनेस में चले गए। लेकिन विदेश में क्या होता है, वहाँ पैसा अच्छा अमेरिका में, तो हस्बैंड वाइफ जब फ्राइडे को शाम को लौट कर आते हैं, तो एक चीज इसी बारे में बताते हैं। तो लोग ने वीकेंड शब्द तो सुना होगा, लेकिन उनका वीकेंड फ्राइडे इवनिंग से शुरू होता है। वीकेंड जो है फ्राइडे इवनिंग से शुरू होता है, सैटरडे भी उसमें शामिल रहता है, संडे भी शामिल रहता है, और खत्म होता है वो मंडे। और इतना बड़ा वीकेंड होता है, क्योंकि वो बहुत मन लगा के खूब मेहनत से काम करते हैं, हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो बेईमानी नहीं करते हैं। जैसे अपने यहाँ 100 में से 99 बेईमानी तालीम होता, उनके यहाँ से 100 में से एक आध बेईमान होता है, ऐसा। बाकी सब ईमानदारी से काम करते हैं, तो खूब मेहनत से काम करते हैं। और हस्बैंड वाइफ जब दोनों लौटते हैं फ्राइडे की इवनिंग को, तो बच्चे पहले से तैयारी कर लेते हैं, कैंपिंग वो लोग वहाँ पर पहुँचते। तो आजकल तो तुम देखोगे अगर फ्लिपकार्ट पे, तो तुम्हें मिल जाएगा, कुछ नहीं उसमें एक डोरी खींचते हो, पूरा फट से खड़ा हो जाता है। तो वो लोग जो बड़ी सी कार होती है जिसमें पीछे सामान रखने की जगह होती है, जबलपुर में इसुजू की 1-2 गाड़ी हमने देखी, ब्लैक कलर की जगह, पीछे सामान रखने की जगह, और अंदर बहुत बढ़िया एसी। तो इस तरह वो लोग कार, जो बड़ी सी कार होती है उनको ट्रक्स कहते हैं। अपन ट्रक को ही ट्रक कहते हैं, वो लोग उसको ट्रक कहते हैं। वेयर इज माय ट्रक? अगर उसको अपनी कार नहीं दिखी तो वो पूछेगा, अपन पूछेंगे वेयर इज माय कार, पूछेगा वेयर इज माय ट्रक। हमने मूवीज में देखा, तो उसमें वो अपना बोटे वोटे जो भी रखते हैं सब रख के बस निकल जाते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, और जंगल में जाते हैं, और नदी के किनारे जहाँ पानी निकलते हैं खाना बनाते हैं, वहीं से मछली पकड़ते हैं, और मंडे को सुबह वापस आते हैं और फिर काम में जुट जाते हैं। मतलब मंडे टू फ्राइडे खूब जम के काम करते हैं, फ्राइडे से पूरे वीकेंड में जम के एंजॉय करते हैं। और हमारा सभी का प्रकृति के साथ होना बहुत जरूरी है। हमें भी महीने में एक बार हल्की सी पिकनिक कर लेना चाहिए, आपको भी लेकर जाना चाहिए, थोड़ा सा आउट में चले गए, खेतों में चले गए, और आपका तो फैमिली के खेत वगैरह, तो ये जरूरी है। तो होता क्या है वहाँ पे,
लोग ऐसे चले जाते थे और मुसीबत में फंस जाते थे क्योंकि वो एडवेंचरस होते हैं। तो ये जो बियर ग्रिल्स था ये पहले फौज में थे, और फौज में जो उनके यहाँ के नेवी सील्स होते हैं उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप फौज के मैदान में पता नहीं कहाँ पे आपको उतार दिया जाए, कहाँ आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ बस्ती है कहाँ नहीं। और अगर आप जंगल में कहीं आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप जीवित कैसे हैं? तो उनको सिखाया जाता था। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं इसी को लेके वीडियो बनाना सीखूं, क्योंकि अमेरिका में बहुत दुर्घटना है और पता चला कोई कहीं फंस गया कोई कहीं फंस गया। फिर उन्होंने 911 को फोन किया, फिर हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने बचाया। तो वहाँ एडवेंचर खूब करते हैं। अपन को एडवेंचर की जरूरत नहीं होती क्योंकि अपने यहाँ की सड़कें इतनी एडवेंचर होती है कि गाड़ी चलाते चलाते अपनी नदी पहाड़ सब खेल लेते हैं। अपनी तो जिंदगी ही पूरी एडवेंचर में रहती है, पता नहीं कब लाइट गुल हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, तो अपन वैसे ही एडवेंचर करते रहते हैं। और उनके यहाँ इतनी सुविधाएं हैं कि उनको इस सब के लिए तो वो उसका प्रोग्राम इसलिए सफल हुआ कि लोग उसमें देखते हैं कि यार हम वीकेंड में अगर फंस गए तो कैसे बचेंगे। चलिए आगे बढ़े। आज हम एक और नया चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो कुल वाले जहां आपने पेज छोड़ा हुआ हेडिंग के बाद अगर आपने कोई सेंटेंस लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, समय आने पे हम लिखवाएंगे सेंटेंस। हम वापस फिर से 10 पे आएंगे समय आने पे। अभी आप खुद वाला पेज खाली छोड़ दीजिए दोनों तरफ और अगली हेडिंग राइट साइड में लिखिएगा दाएं तरफ के पेज में। चलिए मैंने रेड कलर से लिखना बंद कर दिया, डेकोरेशन के लिए रेड कलर को यूज कर लेता हूँ। पिछली बार याद है बच्चों हेडिंग के बाद हमने क्या लिखा था? क्या एक छोटा सा पार्ट लिखवाया था, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आज हम थोड़ा सा बदल के गेम जी यार अभी कुछ समझ गए। ये जो हेडिंग है वो दिस इज द पास्ट ऑफ टेंस। कौन है दिस इज द पास्ट, गुड इज द पास्ट ऑफ। तुम ऐसा कर लो, अगर कंफ्यूजन है तो ऐसा कर लो, दिस को काट के लिख लो गुड इज द पास्ट ऑफ, लेकिन दोनों तरफ इन्वर्टेड फॉर्म। अच्छा क्या पूछ लिया, जैसे ये बिल्कुल कभी नहीं कुछ कुछ भी सीधे लिख के जाती है, ये भी अच्छा नहीं मानते हैं। ये तो पुरानी प्रक्रिया है, रट्टा रट्टा कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन डर के मारे पूछ लिए। आज हम थोड़ा सा आज आप कुछ लिखना नहीं है, हेडिंग सामने है, आप सब में थोड़ी देर बाद लिखवा देंगे बाकी चीज। आज हम एक नया गेम खेल रहे हैं। अभी तक 2 चैप्टर में हमने क्या किया, पहला राउंड हमेशा गाइस के लिए, तो दूसरे राउंड में सबने सब्जेक्ट। आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम क्या करेंगे, हम कुछ सब्जेक्ट और आपको उससे सेटिस्फाई करना, ठीक। और आज हम आपके मन में बैठी हुई हिंदी की जंजीरें तोड़ने वाले, आपको खुद को खुशी मिलेगी। हम करवाएंगे सब कुछ आपसे, लेकिन एक व्यक्ति करेगा और बाकी लोगों की का फायदा होगा उसमें। तो हम शुरुआत ऐसे ही कर रहे हैं। चलो हम वहां से शुरू करते हैं। आपको
आपको अपने मन से एक सेंटेंस बनाना है। इस बार आप चाहें तो इन्वर्टेड बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल, जो इच्छा हो। What should I अच्छा, तुमने गड़बड़ कर दिया, तुम बनाओ एक सेंटेंस। हाँ, आप बनाओ। I should वर्ब भी तो रखना है। सेंटेंस उसका भी गलत है, उसका भी गलत है, I should smile. कंप्लीट द प्रश्न। I smile. गुड। पुट योर हैंड्स टुगेदर। 27 साल से राधा ने आपको सिखा के भेजा कि आइए। अब देखिए, हम आपसे ही लेकर सुधारना। हमने उनको कहीं ना डांटा ना कोई दंड दिया, तीनों के सेंटेंस सही, लेकिन जो हमें चाहिए था वो कहाँ थे? अब सबने ध्यान दिया आई का हिंदी बदलेगी क्या? तो ये अगर कोई इसको लिख रहा है तो वो बेवकूफ, लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ हम हेडिंग बदलेंगे, यहाँ हिंदी पट्ट से बदलेंगे। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम स्थितियों को देख के फट से अपना पाठ्यक्रम बदल लेते हैं। अभी हम अन्य सब्जेक्ट में जाएंगे। ये राउंड पहला आई से ही कुछ भी, आप कुछ भी करें, इन्वर्टेड, नेगेटिव, जिसकी जरूरत, क्योंकि अब वो बाहर निकल के आ गई चीज जो हम आपको देना चाहते। बेटा ये हिंदी देखने नहीं है, तुम इंग्लिश वाले हो ना, इंग्लिश मीडियम के, तुम्हारा ज्यादा अच्छा सिस्टम। ये हम इन भैया दीदी के हिसाब से चल रहे हैं जो हिंदी माध्यम से, ये सब हिंदी में माध्यम वाले हैं, तो हमें इनको हिंदी के हिसाब से, तुम आई को बस आई लेके चलो, बस हिंदी बदल रहा है, ये ध्यान रखना है। उनका सेंटेंस, तुम अपना सेंटेंस रिपीट कराना सबसे। आई शुड गो, मुझे जाना है। रिपीट कराने का मतलब धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ये हमें पहले भी सिखाया गया। आगे I should be a doctor. मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। ये कल हम आपको दूसरे रूप में वो भी वही कर रहे थे। Should I be your best friend? क्या मुझे तुम्हारा प्रिय मित्र बनना चाहिए? बेटा हम बहुत देर तक वेट करते रहे, वहाँ पे एकदम विराम आ गया, फिर हमने आगे बढ़ाया, तुम इधर उधर देखते रहे, उसको मौका मिल। अब क्या करें, वो रुक के गया था, तुम उसको देखते रहे तो हम आगे बढ़ गए। अभी आ रहे हैं ना हम तो। Should I be your best friend? क्या मुझे तुम्हारा प्रिय मित्र बनना चाहिए? I should draw. बच्चे के सेंटेंस को थोड़ा सा I should draw another picture. मुझे दूसरा चित्र बनाना चाहिए। ड्रॉ यानी चित्र बनाना, उसी का नाम है ड्राइंग, सब जानते। I should rent. Good. चलो अब बच्चे, what should be the first point? The first point should be identification.
लेकिन एक बात देखा बच्चों, वहां से लेके यहाँ तक आपने आज बिना फॉर्मूले के सेंटेंस बना लिया, आप सबको बता रही ना आइडेंटिफिकेशन लिखवाई हमने ना फॉर्मूला लिखवाया, तो आपने कैसे बनाया? हाँ, I should have some disease. मुझे कुछ disease खानी चाहिए. इनके सेंटेंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाते हैं। I should have veg dishes only because it is easy. मुझे सिर्फ शाकाहारी डिशेस खाना चाहिए। हैव का प्रयोग है खाने के लिए, सॉरी क्योंकि आज मंगलवार। बेटा तुम्हें बधाई हो, तुम्हें एक बहन की प्राप्ति। हाँ, कैसे हुई हम बताते हैं। तुमने भी किसी को नहीं सुना कि वो क्रिया का कौन सा रूप रहता है, सेकंड फॉर्म रखने लगे है ना, उन्होंने फर्स्ट फॉर्म रख दिया जबकि बच्चे ने फर्स्ट फॉर्म ही रखा। इसलिए हाँ, हम चाह रहे थे तुम्हारे मुंह से Should I trust unknown person? क्या मुझे अनजान लोगों पे भरोसा करना चाहिए? हमने पहले भी कहा था कि आपकी अप्रोच मतलब सेंटेंस प्रैक्टिकल बनाते हैं, ये बाकी सब चीज को ध्यान दें। जैसे उसने इस पर सोचा नहीं, जबकि हमने कैटेगरी भी छूट रखी, वो बोल सकते कि बोलेगा I should not smoke because I belong to traditional family. ये हमने एक्स्ट्रा लगाया। मैं पारिवारिक और क्या हिंदी बोल सकते, पारंपरिक परिवार से हूँ, इसलिए मुझे शुद्ध नहीं मानना चाहिए। अब हमने वर्ब सीखी, नेगेटिव बनना चाहिए। अच्छा सेंटेंस है, हम इसमें थोड़ा सा फेर बदल दें। इन्वर्टेड, आपने इन्वर्टेड बना के अच्छे किया, छोड़ देंगे। अब हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इनको अच्छा समय मिल जाएगा, बोलेगा बच्चों should I believe the strangers, क्या मुझे अजनबियों पर विश्वास करना चाहिए। बच्चों आज पहली बार आपके बैच में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आज तक किसी ने नहीं बनाया। चलो इस बार तुम हमारा संकेत समझ गए, थैंक यू। ये कैसे बनाया है, इसको कहते हैं बेटा एक मिनट है ना,
Should I not talk to you? क्या मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए? बेटे ये बात बता रहा है ना, ये तुम्हारे लिए था नहीं, लेकिन तुमने इसको सीख लो कि आई का मतलब मैं से बदल के मुझे होना है, इस जगह, है ना? नहीं तो वो ऐसे नॉट है नहीं, Should I not check with you? क्या मुझे थोड़ा सा चेक नहीं करना चाहिए? Should I be more careful by driving? क्या मुझे और सावधानी बरतनी चाहिए गाड़ी चलाते समय? हिंदी थोड़ा सा सुधार दीजिए, तुम्हारी अप्रोच भी अच्छी है मिस्टर पटेल की जैसी, तुम बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट वगैरह चुनिए। बोलेगा should I be more careful while driving? क्या मुझे गाड़ी चलाते समय और सावधान रहना चाहिए। आपने भी इन्वर्टेड बना, बच्चे ने भी inverted। हाँ ऐसा बोलना चाहिए फिर। Should I get success in my business? क्या मुझे अब सफलता प्राप्त मेरे बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी करनी चाहिए? नहीं करना, कुछ और सोच के बना दिया, बिलो दिया। Should I take a rest because I am working since last night? क्या मुझे आराम करना चाहिए क्योंकि मैं कल रात से काम कर रहा हूँ? इसको एक बार हमारे साथ बोलिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Should I take rest because I have been working since last night? क्या मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? क्योंकि मैं कल रात से काम कर रहा हूँ। What should I do for her birthday party? मुझे उसकी बर्थडे पार्टी के लिए क्या करना चाहिए? Should I copy? क्या मुझे I should go to her office. क्या मुझे उसके ऑफिस जाना चाहिए? ये जो लिखे दिए ना, ये प्रकार है बात के। तो तुम कौन सा प्रकार करना है? अफर्मेटिव बना रहे हो कि इन्वर्टेड, नेगेटिव, कौन सा बना है? सीधा सिंपल वाक्य बना रहे कि प्रश्नवाचक बना रहे हो कि नकारात्मक, कौन सा बना रहे? थोड़ी देर सोच लो। Should I not hang out? क्या मुझे बाहर जाकर मौसम करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कौन सा बनाया? ये इंट्रोवर्टेड इन्होंने ये देख के और सोच समझ के बना है। दुख लगा है, ऐसा नहीं है। Should I later ग्लिटर वर्ब आई के साथ किस जमीन should I erase
क्या क्या मुझे ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए? अब यहाँ ध्यान देंगे, पिछली बार आपने इन्वर्टेड बनाया, अब दूसरा मौका मिल रहा है तो इस बार बदल देना। You should change the category. आपको कैटेगरी बदल देना है। I should erase blackboard. मुझे ब्लैकबोर्ड साफ करना चाहिए। बच्चों it is 7 o'clock. Should we conclude the class? Yes, sir, we should conclude the class. क्या अपने को क्लास समाप्त करना चाहिए? नहीं, हाथ नहीं उठाना है हमें। ये स्पोकन की क्लास। Can I go next sentence? गलत बोलो, लेकिन बोलो दे। I should not that book. Can I make one more? So can I make one more sentence? No, no one can. I should not that book. अगर यह क्रिया नहीं है तो कर्म हो जाएगा। Swing that, swing. जो लिखी है उनमें से कुछ ना कुछ रखें, एक्स्ट्रा एफर्ट ना I should not लिखी हुई वाले में से उठा के रखें। सबसे अच्छा ऐसा उठाना, ऐसा उठाना, ऐसा जो भी कलर डिजाइन पसंद हो। I should not write. दांत को वर्ड I should not write. करेक्ट। क्या मैं लिख सकती? क्या मुझे लिखना चाहिए? ये क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए? सॉरी फॉर हिंदी। हिंदी। I should not write. करेक्ट। मुझे नहीं लिखना चाहिए। बोलो भारत।